Good evening, student. This is Veer Singh Rajput in front of you once again with the same chapter, Reconstruction of Partnership Firm. Student, in previous lectures we have discussed the small kind of questions which are to be asked in the examinations. Today, we are not going to discuss a question, but we are just going to discuss a format that will be very helpful for you while preparing the 8-mark question of chapter number 5 and chapter number 6 compulsory. As you know that from this chapter, long questions are not going to be asked. Only short questions that are going to be asked that we have studied. We have found the gain ratio as well as sacrifice ratio. And I have given you all the questions into your homework. Right now, today we will understand how we have to solve the big questions. As these big questions are not going to ask me in the examinations, but these big questions will be more and more helpful for you to solve chapter number 5 and chapter number 6 when we will enter in those chapters. So it can be said it is a basic part of chapter number 5 and 6 that we have to understand over here, right? So first of all, we should understand in this chapter how many accounts are going to be prepared. The first account, that is revaluation account, जिसे हम पुनः स्थापना अथवा पुनः मूल्यांकन, नॉट पुनः स्थापना, इट्स पुनः मूल्यांकन एक खाता के नाम से हम जानते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट. सेकेंड वन, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. इफ आस्क्ड, अगर आपसे मांगा जाए कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाइए तो आपको बनाने का आएगा साझेदारों का पूंजी खाता. सिमिलरली, पार्टनर्स करंट अकाउंट इज ऑल्सो डिमांडिंग सम ऑफ द टाइम्स. So if it is demanded, then we will have to prepare it. And after on, balance sheet. So sometimes in reconstruction they ask prepare the final accounts of the company after reconstructions. So when they ask, we have to prepare that in. But these all accounts are needed when we solve a 8-mark big question in chapter number 5 and chapter number 6. Today we are going to discuss a format of revaluation account. पुनः मूल्यांकन खाता जिसे हम कहते हैं, उस अकाउंट के बारे में हम डिस्कस करेंगे. उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं that we are going to discuss. First of all, as you all know, the account has two sides, debit side and credit side. First of all, we will discuss the debit side of revaluation account. As you can see, the first topic that is given over here, that is asset decreased. Now, which kind of assets? All kind of assets which decreased their value, which are decreasing their value due to revaluation or due to reconstruction of the partnership firm. देखो, किसी भी बिजनेस में एक चीज़ तो आपको बहुत चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी. एसेट्स एक ऐसी वस्तु है जिसकी वैल्यू कभी फिक्स नहीं रहती. उसकी वैल्यू अनसर्टेन होती है, कभी बढ़ जाती है, कभी घट जाती है. सिमिलरली हियर वी आर गोइंग टू नोट डाउन कि रिवैल्यूएशन होने के कारण, रिकंस्ट्रक्शन होने के कारण प्रीवियस ईयर की जो बैलेंस शीट है और अभी जो रिकंस्ट्रक्शन पीरियड है उस टाइम के बीच में आपकी एसेट्स और लायबिलिटीज के बीच में कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे. वो जो चेंजेस हुए हैं वो सारे के सारे चेंजेस वी विल नोट डाउन ओवर हियर. सो द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव गिवन, एसेट्स डिक्रीज्ड. अब आई हैव नॉट रिटन ऑल द एसेट्स नेम, बट एसेट्स, संपत्तियां जो भी हैं उसकी वैल्यू में अगर डिक्रीज होगा तो एनी काइंड ऑफ लॉस और एनी काइंड ऑफ डिक्रीज दैट आर टू बी शोन ओवर हियर. सेकेंड स्टेप आपको दिया हुआ है, लायबिलिटीज इंक्रीज्ड. अगर जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, लास्ट ईयर हम 10,000 पे करते थे, दिस टाइम इज मोर देन 10,000, 11, 12, 15,000. वो जो एक्सेस अमाउंट वी आर पेइंग कंपेयर टू प्रीवियस ईयर, दैट इज नॉन एज लायबिलिटी इंक्रीज. तो एक तरह कोई भी खर्च या नुकसान जो भी होगा, उस खर्च या नुकसान को हम क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में शो ऑफ करेंगे. Another one thing that is given over here, that is bad debts written off. Bad debts written off का मतलब ये होता है कि when customer denies, कस्टमर ये बोल देता है कि आपको जो करना कर लीजिए, आई एम नॉट गोइंग टू पे द कंडीशन, आई एम नॉट गोइंग टू पे द अमाउंट. या मेरी कंडीशन ऐसी नहीं है कि मैं
आपके लोन को या आपकी जो अमाउंट है उसे पे कर सकूँ, तो वो एक तरह का क्या होता है, बैड डेट्स होता है, पैसा डूब जाता है, तो एक तरह का काइंड ऑफ लॉस दैट इज ऑल्सो रिटन ओवर हियर। द नेक्स्ट स्टेटमेंट दैट इज बैड डेट्स रिजर्व। अब बैड डेट्स रिजर्व के बारे में हम लोग पहले सीख चुके हैं, समझ चुके हैं। बैड डेट्स रिजर्व का मतलब होता है कि जब कोई कस्टमर हमें पैसा देने के लिए आनाकानी कर रहा हो, कुछ घुमा रहा हो, जो भी डेट पेमेंट की देन कही गई हो उस पेमेंट की डेट पर वो खुद ही एप्लीकेबल ना हो रहा हो, आई ना रहा हो, प्रेजेंट ना हो रहा हो, और उस ऑन द सेम डेट इफ ही इज़ नॉट पिकिंग द फोन, अगर ऐसे कुछ सिम्टम्स दिखते हैं तो हम लोगों को ऐसा डाउट जाता है मन में कि दैट दिस कस्टमर मे बी मेक अस इन लॉस, अथवा और दिस कस्टमर मे प्रोवाइड अस बैड डेट्स। तो हम वो बाद में जब बैड डेट्स प्रोवाइड करेगा उसके पहले ही हम ऐसा प्रीज्यूम कर लेते हैं कि इफ़ ही इज़ अ कस्टमर ऑफ 10,000 रुपीज़ एंड मे बी पॉसिबल कि उसकी कंडीशन देखने से ऐसा लगता है कि 2,000 या 3,000 क्या कर देगा, हमारा वो डुबा देगा, तो हम पहले से एक प्रोविज़न कर लेते हैं कि इतनी अमाउंट क्या हो जाएगी और हमारी यहाँ से डूबने वाली है। दैट इज़ नोन एज बैड डेट्स रिजर्व। प्रोविज़न है काइंड ऑफ प्रोविज़न, बट दिस इज़ नॉट एक्सेप्ट provision. It may be a wrong provision because sometimes when the condition of the customer recovers, he pay all the money, और उस टाइम हमारा जो रिजर्व हमने जो प्रोविज़न किया हुआ पहले से वो कम्प्लीटली रॉन्ग प्रूव हो जाता है। तो इट्स अ काइंड ऑफ प्रोविज़न बट कंपनीज करती हैं, और एवरी फर्म हु इज रनिंग अ बिजनेस दे डू द प्रोविजन सच लाइक दैट। आफ्टर दैट on the opposite side, credit side is given assets increased. मैंने आपको पहले ही कहा assets are such things which may be increase or which may be decrease। तो increase हो जाएगी कोई भी assets तो उसका वैल्यूएशन बढ़ेगा तो कंपनी का फायदा है, so वो क्रेडिट साइड लिखा जाएगा इस काइंड ऑफ अ बेनिफिट। liabilities decrease against which a kind of liability which is decrease due to certain reason। मे भी पॉसिबल कि मैं मेरे कस्टमर्स को ऐसा बोलूँ कि आप कुछ पेमेंट मुझे मत देना, या फिर आपकी कंडीशन अच्छी नहीं है तो मैं ये रकम वेव ऑफ करता हूँ, वेव ऑफ मतलब छोड़ देता हूँ, तो वो कस्टमर का एक तरह क्या हो जाता है, बेनिफिट हो जाता है। तो उसी तरह से सिमिलरली कोई जो हमारा क्रेडिटर है वो हमारी कंडीशन को देखकर हमें क्या कर दे, कुछ लाइबिलिटी हमारी माफ़ कर दे। सपोज मैं 55,000 के क्रेडिटर्स मेरे हैं जो मुझसे 55,000 मांगते हैं, आज मेरी कंडीशन को देख के उसमें 15,000 बोलते हैं कि आप 15,000 पर मत दीजिएगा, तो मेरा तो एक काइंड ऑफ बेनिफिट हो गया ना एक तरह से। तो नाउ माई न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी विल बी ओनली 40,000 रुपीज़। सो हाउ मच वी आर इन प्रॉफिट, वी आर इन प्रॉफिट ऑफ 15,000 रुपीज़। सो दैट इज रिटन ओवर हियर। ऑन द डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, आई हैव रिटन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। अगर हम पुनः मूल्यांकन खाता क्लोज करते हैं, ये रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज करते हैं, तो डेबिट साइड अगर डिस्टेंस आता है, कोई भी डिफरेंस आता है, वो जो डिफरेंस आ रहा है वो डिफरेंस को हम क्या बोलेंगे, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट का नाम देंगे। और उसमें हम तीनों पार्टनर्स या चार और पाँच जो भी पार्टनर्स हैं उनका जो भी रेशियो वट एवर द रेशियो इज गिवन, हम उस रेशियो में क्या करेंगे, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद अगर यहाँ प्रॉफिट उधार तरफ डेबिट साइड पर अगर हम क्लोज कर रहे हैं, डेफिनेटली जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो उस कैपिटल अकाउंट के थ्रू क्रेडिट साइड क्या करेंगे, हम उसकी इफेक्ट को सॉल्व करेंगे। सिमिलरली इट मे बी पॉसिबल कि अगर प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो लॉस तो होगा ही होगा, ठीक है। अब बिजनेस है, बिजनेस में दो ही चीज़ें हो सकती हैं, आइदर प्रॉफिट और लॉस। इफ इट इज लॉस तो वी हैव टू गो ऑन द अदर हैंड क्रेडिट साइड, और क्रेडिट साइड में सेम थिंग, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट रिवैल्यूएशन लॉस विच इज टू बी डिवाइडेड बाय between three partners or among three partners A, B and C at what ratio, whatever the ratio is given to you. I have assumed over here 3:1, 2:1। तो जो रेशियो दिया गया है उस रेशियो को हम क्या करेंगे, उससे डिवाइड कर देंगे और डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद द सेम लॉस जो है यहाँ क्रेडिट साइड आया हुआ है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के हम उसको डेबिट साइड में क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, राइट। सो दिस इज ऑल ओवर अबाउट योर रिवैल्यूएशन अकाउंट। कल हम रिवैल्यूएशन अकाउंट के सम्स के साथ क्या करेंगे, आपके सामने हाजिर होंगे। टिल देन गुड बाय। आप लोगों के लिए होमवर्क में ये फॉर्मेट तो आपको रिवाइज करना ही करना है, लिखना है और लर्न करना है। बुक में दिया है वैसे आप कॉपी पेस्ट कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस फॉर्मेट के जस्ट पहले आपको 10 to 11 जो जनरल एंट्रीज हैं वो भी दी हुई हैं, तो
तो आप लोग इसको नोट डाउन करिएगा कंपलसरी। और ऑल दिस 11 एंट्रीज विद हेडिंग एंड जर्नल एंट्रीज दे आर टू बी also to be note down in the book and learn all those entries properly, because those entries will be very much crucial and helpful for you for 8 plus 8 16 marks sum. ठीक है, with this one, goodbye, see you, good night.